Leaders become great not because of their power but ability to empower others by John Maxwell. Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buds. Today we are going to understand about power sharing. So let's get going. तो फिर चलो पावर शेयरिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पावर शेयरिंग ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. ये दोनों कंट्री के जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो हम जानेंगे एंड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंकाज पॉलिटिकल स्टेटस वी आर गोइंग टू एनालाइज इंडियाज पॉलिटिकल कंडीशन. ओके, और ये भी हम जानेंगे कि इंडियाज डेमोक्रेसी कहाँ तक पावर शेयरिंग को दर्शाया. इवन ये भी देखेंगे कि इंडिया हाउ मच दे हैव गॉट सक्सेस. ठीक है, तो फिर चलो already I have made that flow chart. So इसमें क्या होगा within very little time you can get that much confidence. Okay, so फिर first one ethnic composition. Actually first we need to start from Belgium कि कहाँ के हैं, European country, and definitely its very size is very small if we are going to compare. तो हरियाणा से भी छोटा है. ठीक है, तो नाउ एथनिक कंपोजिशन क्या है, वो वहाँ पे कौन सा कम्युनिटी के लोग रहते हैं. सो यहाँ पे डच, फ्रेंच एंड जर्मन. तो नाउ डच दे आर 59%, फ्रेंच 40% एंड जर्मन 1%. ठीक है, नाउ जर्मन दे आर 1%, दे आर साइलेंट हियर. बट think about Dutch and French. Here Dutch is they are showing their majority, and French they are showing their minority. Now this scenario actually countries scenario. Now Brussels, their capital city, here scenario would be something different. Now what would be there? French speaker here they are majority. They here for the country they were minority, but for capital city French speaker were majority. 80% people used to speak in French and 20% Dutch. Is it clear? Now because of that 1950 to 1960 they had French and Dutch they had a great tension कि who is going to take care of Belgium, who is going to govern. So it was really very tough situation for them. But 1970 to 1993 these 23 years उन लोगों ने 4 times कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4 times किया. वो क्योंकि नाउ नेक्स्ट एम यही था, दे वांटेड टू लिव टुगेदर इन ए कंट्री, इन ए सिंगल कंट्री. They wanted to live together. Together means Dutch, French and German. So they wanted to live together. Not only that, peacefully. Okay, that much clear. Now तो फिर अगर इतना कॉम्प्लिसिटी है और रहना भी है साथ में, तो फिर करें क्या? करना है कि we need to take some measures. We need to take for the smart way में हमें कुछ स्टेप अपनाना है. वो स्टेप क्या है? These are Belgium model. तो वो due to 4 amendment से because of that they have set up all these rules and regulation. ठीक है, तो ये जो स्टेटस है, ये जो मॉडल है वो हम जानेंगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन लोगों ने क्या किया कि डच एंड फ्रेंच द सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर वुड बी देयर. Okay, for Dutch or from Dutch community also, from French community also, for central government equal number of minister
equal number of minister would be there for the central government. बात खत्म. Dutch and French both are happy. Now the second step, what was the second step? So central government का जो भी पावर था वो सारे नहीं, बट कुछ कुछ पावर दोनों स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. एक तो डच एंड सेकेंड फ्रेंच. देखो ये सेंट्रलाइज नहीं है. जो सेंट्रल का जो पावर था उसमें से कुछ पावर डच को, कुछ पावर फ्रेंच को दिया गया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ब्रुसेल गवर्नमेंट के लिए अगेन द सेम प्रोसीजर, equal representative would be there. So equal representative from Dutch and French. ठीक है. Now fourth one more government they have set up, that is community government. ना कम्युनिटी गवर्नमेंट वो है क्या कि दोज पीपल आर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज, वन सिंगल लैंग्वेज. जैसे क्या डच उनके लैंग्वेज अलग है, फ्रेंच उनके मीन्स दैट इज वन लैंग्वेज, जर्मन their language is different. So according to their own community they have set up community government. So here German also got chance to govern for their community government. और वो जहाँ कहीं भी रहा हो, it doesn't matter, but for the German community, for their own government, for the French community they will have their own government, even Dutch the same. So that is known as community government. So here we are going to write Dutch plus French and German. So for these three government set up. Now just find out जो country हरियाणा से भी छोटा और उसमें three community they are living over there, even majority minority such kind of complicity was there, but still they wanted to live peacefully. So that's why they have made all this model, and later on what was the outcome? Definitely they had a very strong wish, so that's why they had got a great success. Though it's very difficult to follow, even if if we are thinking about really we will get scared, but they did. Why? Because they really wanted to live happily, so that's why outcome they are living happily. Okay, and not only that, यूरोपियन कंट्री जब भी वो गैदरिंग के बारे में सोचते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में सोचते हैं, ऑन दैट टाइम दे आर चूजिंग ब्रुसेल एज ए हेडक्वार्टर. जस्ट इमेजिन, अपने अपने घर में तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं अपने कंट्री के अंदर, बट थ्रू आउट वन कंटिनेंट इफ दे आर चूजिंग वन दैट कैपिटल सिटी एज ए हेडक्वार्टर, दैट मीन्स दैट मच क्वालिटी दे हैव एंड दे रियली डिजर्व. सो दिस इज ऑल अबाउट बेल्जियम. चलो अब हम श्रीलंका के जो सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस वो हम जान लेते हैं. So first it is written major social group. Definitely here two community they are living over there, Sinhala and जो क्या ना श्रीलंका के हैं वो they are known Sinhala, and second one Tamil. Two kinds of Tamils are there. Few Tamils were there जो क्या ना बहुत दिन पहले उनके दादा परदादा they went there for their plantation work and वो उधर ही रह गए हैं. So Tamil they are actually divided, एक तो श्रीलंकन तमिल and the second one Indian Tamil. Okay, so now Sinhala actually there 74% and Tamil 18%. ओके, नाउ ये तमिल जो 18% है, अगेन श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल. श्रीलंकन तमिल दिस इज
5% and that one 30%. So this is the that social scenario. ओके नाउ रिलीजन वहाँ पे एक तो बुद्धिज्म वाज फॉलोड बाय सिन्हला and Hindu Muslim you can find over there for Tamil. Okay, now that 1948 Sri Lanka got independence. Okay, Sri Lanka emerged as a independent country. Now who is going to take care? Definitely on that time, that 1948, on that time Sinhala got majority, and that majoritarianism, that is a belief. Okay, due to this belief, those community means Sinhala here they have got majority, and because of that they are going to set up whatever they wish. Okay, according to their wishes they want to set up all these rules and regulations. ठीक है, so 1948 Sinhala got majority to frame govern. Now Act of 1956, जैसे ही सिन्हला को गवर्निंग करने का मौका मिला वैसे ही उन्होंने 1956 को अपना एक्ट बना लिया. सो वो एक्ट क्या क्या है? फर्स्ट वन, ऑफिशियल लैंग्वेज उन लोगों ने फिक्स कर दिया, दैट इज सिन्हला. Sinhala was considered as the official language. Now extra privilege were given to Sinhala. Means जो भी Sinhala है, they will get chance for higher education. Even they will be preferred for government job. Okay, so these extra privilege were given to Sinhala. So here I am writing education plus government job. Okay, now one more thing, Buddhism was protected and fostered. Why? Because official religion that Buddhism का माना गया था. So protected of the state by Buddhism. Okay, so this kind of act has been set up by Sinhala's government. Now here everything you can find out, everything for Sinhala. Language Sinhala, then extra privileges that would be enjoyed by Sinhala. Even their religion Buddhism, that would be fostered and that would be protected by the country, means government. Now just think, everything is for Sinhala. So what about Tamil? अब ये तो जरा सोचो, घर पे सपोज इमेजिन करो, घर पे 2-3 भाई बहन हो, एक को अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए तो दोनों आवाज़ नहीं उठाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, एक दिन तो देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, फिर धीरे धीरे they will raise their voice, isn't? So the same thing happened. Feeling of Tamils, that was they were feeling very alienated. Why? So because they felt कि our language also is there, that is Tamil, but that is not fostered. Even our culture is not getting chance. ठीक है, सो लैंग्वेज नहीं है, कल्चर भी फोस्टर नहीं किया जा रहा है, फिर ऊपर से क्या है और क्या है कि एक्स्ट्रा प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा है फॉर हायर स्टडीज, फॉर गवर्नमेंट जॉब. So somewhere they were feeling कि yeah, somewhere we are discriminated by the country, by the state. So now here discrimination for that equality is not there, and insecurity for their language and culture. डिस्क्रिमिनेशन क्या? डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया गया था. सो फॉर दैट डिस्क्रिमिनेशन they were feeling discriminated. Now what was their steps? What they had done? They formed their party. They formed their party and they demanded what exactly was given to Sinhala
That was their demand. Now what was their demand? First one, Tamil would be also considered as a official language. Now the second one, all this extra privilege, whatever it was given to the Sinhala, so the same privilege means higher education के लिए, government job के लिए तमिल को भी चांस मिलना चाहिए. ठीक है. So that these were their demand. But Sinhala, they were not ready to accept, and because of that, what was the outcome? Outcome, by 1980 so many parties had been formed, and outcome was there that the Tamils were against of Sinhala, and result was there as a civil war. So outcome was there civil war. नाउ ज़रा देखो, ये जब से सिन्हला हैज़ गॉट चांस टू गवर्न, उससे पहले के देखो श्रीलंकाज एजुकेशन, हेल्थ केयर, इवन इकोनॉमिकली दे वेर रियली वेरी साउंड. बट बिकॉज ऑफ सिविल वार, सो दे वेर बहुत ही उनको दे वेर नो वेयर. वाई? बिकॉज ऑफ एजुकेशनली, even economically, socio-economically they get destroyed. So that was all about Sri Lanka, and everything because of what was the reason? Reason is there only that belief system, majoritarianism, that based government. Okay. तो now you will tell कि मैम in India also majority is getting chance to govern. तो what is the difference between Sri Lanka and India? तो वो हम अभी आप जानेंगे. ठीक है. Now we are going to discuss about why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, स्पेशली डेमोक्रेसी में क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? पहले ये डेमोक्रेटिक थिंकिंग से बाहर जाके आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि तुम क्या चाहते हो, पावर शेयरिंग इज गुड और नॉट फॉर योर डेली लाइफ ऑल्सो. जस्ट इमेजिन इन द क्लास ओनली एक दो बच्चे को ही सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है क्लास टीचर से, तो द अदर स्टूडेंट्स विल दे फील गुड? डेफिनेटली नॉट. घर पे अगर तुम 2-3 ब्रदर एंड सिस्टर्स आर देयर, तो उनमें से एक ही भाई को और बहन को जो भी है कोई एक को सभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन थोड़ा उनको अपलिफ्ट किया गया, तो और दो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू फील गुड. ठीक है. तो पावर शेयरिंग एक्चुअली, पावर जब तक शेयर नहीं करते हैं, जब तक वो सेंट्रलाइज हुआ रहता है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. तो वो हम जानेंगे. जैसे कि पॉलिटिकल स्टेटस में पावर, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो चाहिए ही चाहिए. क्यों चाहिए वो हम ये दोनों रीज़न को अभी एक्सपैंड करेंगे. तो फर्स्ट रीज़न हमने देख लिया है प्रूडेंशियल रीज़न. प्रूडेंशियल रीजन को पहले इसका मीनिंग समझ लेना ज़रूरी है. प्रूडेंशियल मीन्स अभी जो इन दिनों में इसके जो प्रॉफिट है वो नहीं शायद दिखेगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन सेटल. इवन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वी आर गोइंग टू प्लान, दैट इज प्रूडेंशियल रीजन. तो ये प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है? रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ये वाला रीजन से हम दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. एक क्या है, जैसा कि अगर बेल्जियम का एग्जाम्पल ले, बेल्जियम में फ्रेंच, डच, इवन जर्मन 3 कम्युनिटीज वेर देयर. ठीक है. तो अगर कोई एक कम्युनिटी अगर डील करते, अगर वो लीड करते, तो फिर दो कम्युनिटी वो दे यूज्ड टू स्टार्ट conflicting, means they used to start to show their grievance, isn't like that. So here because of prudential reason here पे reduce the power sharing due to power sharing, so conflict बहुत कम हो जाएगा. जब क्या है ना, बेल्जियम का देख लिया, 2 जर्मन 1%, 2 फ्रेंच somewhere minority, but then also everyone had got chance
फॉर देयर गवर्निंग। तो इसमें भी पावर तो शेयर किया गया, तो इसमें क्या हुआ, रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कम होते गया। और अलग से देखो, ऑन द अदर हैंड श्रीलंका, सिन्हला एंड सेकेंड वन तमिल ग्रुप वेर देयर, बट सिन्हला ने सारे सब कुछ प्रिविलेज ले लिया है, इंपॉर्टेंस सिन्हला को दिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया। तो पावर शेयरिंग बेल्जियम में हुआ, सो बिकॉज ऑफ दैट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, दे वेर एबल टू लिव हैप्पीली। तो दैट इज रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, नाउ हम जाएंगे मोरल रीजन पे। मोरल रीजन मीन्स वी आर गोइंग टू थिंक what is right, what is wrong, that is matter of perception। ये जरूरी नहीं है कि whatever you are thinking that would be same for me also, I can think in another way। ठीक है ना, द वे ऑफ थिंकिंग मे बी इट वुड बी डिफरेंट। तो दैट डिपेंड्स ऑन मोरल रीजन। तो जैसे कि एक गवर्नमेंट है, तो वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो एवरी और एज ए सिटीजन एवरी वन हैज राइट टू स्पीक अप, टू शेयर देयर व्यू, to keep their opinion in front of others। तो इसमें क्या है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। हमें पावर दिया गया है, सो दैट्स वाई वी कैन ओपन अप, वी कैन शेयर आवर व्यू, isn't? So that is actually spirit of democracy। डेमोक्रेसी क्यों स्पिरिट माना गया है कि डेमोक्रेसी में ईच एंड एवरी पर्सन दे हैव ए राइट टू ओपन अप, टू शेयर देयर व्यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच, isn't? So now here, तो अगर पावर शेयरिंग नहीं है, पावर अगर नहीं दिया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास अगर पावर होते, तो फिर दैट इज सेंट्रलाइज्ड, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट के पास भी जितना पावर है, फिर सिटीजन के पास भी पावर है, दूसरे सोशल ग्रुप के पास भी पावर है, वो भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। दे हैव राइट टू क्रिटिसाइज इफ समवेयर गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो एवरीवन हैज राइट टू ओपन अप, टू शेयर देयर व्यू। सो दैट्स व्हाई मोरल रीजन, दैट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयरिंग कर रहे हैं, इफ पावर शेयरिंग हो रहा है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज इन राइट वे। So that's why power sharing is really desirable for democracy, for the healthy democracy। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इंडिया कहाँ तक पावर शेयर किया एंड हाउ मच पावर हैज़ बीन शेयर्ड इन पॉलिटिकल एरा। ठीक है, तो फर्स्ट इट इज गिवन among different organ of the government। So here organ of government three are there: legislature, executive and judiciary। These three organ, they are equally treated, their power is equally shared। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर का ज़्यादा पावर है देन एग्जीक्यूटिव देन जुडिशरी, नॉट लाइक दैट। दे आर एम्पावर्ड इक्वली। सो दैट्स वाई देयर जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज नोन एज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव and judiciary। Okay, so that is known as horizontal form of government, where legislature, executive and judiciary, they have equally, they have been given equal power। Okay, and that is also, that form of government is known as check and balance method। check and balance method क्यों कहा गया है कि क्यों लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकते हैं। मीन्स एवरीवन हैज राइट। वो वाले जो दिस गवर्नमेंट, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन टेक ए नाइस एग्जांपल फ्रॉम आवर स्कूल एनवायरनमेंट। जैसे कि फ्रॉम योर क्लास, 3 rows are there, 3 rows। So you people are equally empowered। ऐसा नहीं कि ये रो को बहुत टीचर ने बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, ये दोनों रो कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा होता है क्या? नेवर एवर।
क्यों? क्योंकि फ्रॉम योर क्लास ऑल वुड बी ट्रीटेड इक्वली, all would be respect equally, everyone power would be equal, so that is horizontal form of government. याद बहुत अच्छी तरह से रख पाओगे, जस्ट याद रखना अपना own class, our own class, and we are just याद कर लो एक एक रो, one row for legislature, one row for executive, another row for judiciary. That is form of horizontal form of government. नाउ दूसरे पे जाएंगे जो क्या है ना, लेवल ऑफ, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसमें क्या है पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज्यादा से कम है. जैसा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, उससे कम पावर स्टेट गवर्नमेंट, उससे कम पावर लोकल गवर्नमेंट. तो ये भी एग्जांपल हम स्कूल लेवल पे ही ले सकते हैं. जैसे क्या, प्रिंसिपल, देन टीचर, देन फोर्थ स्टाफ. ठीक है, ऑल आर एम्प्लॉई डेफिनेटली, बट उनका लेवल के हिसाब से, उनका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको लेवल में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, ओके. नाउ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी बांटा गया है. ये तो एग्जाम्पल, नाइस एग्जाम्पल बेल्जियम का, जो क्या है ना, दैट व्हाट आर दे, डच, देन फ्रेंच एंड जर्मन. सो डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर बांटा गया है, सो ताकि कि everyone would be happy and no conflict, or we can't say no conflict would be reduced, कम हो जाएगा. ठीक है. Now next is their political parties, pressure group and movements. Definitely here in India so many political parties are there and पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर हैज बीन गिवन, तभी तो वो 5 years के बाद वो इलेक्शन लड़ते हैं. ऐसा नहीं है जो अभी जो पार्टी गवर्निंग कर रहे हैं, इवन इफ दे हैव इनफ मींस द मैक्सिमम पावर, तो वो तो हमेशा के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाएगा, हमेशा वही पार्टी. नॉट लाइक दैट, है ना. तो डिफरेंट पार्टी, वेरियस जो पार्टी है उनमें भी पावर शेयरिंग है, जो क्या है ना, इलेक्शन के टाइम ईच एंड एवरी पार्टी वुड बी ट्रीटेड इक्वली. ठीक है. सो नाउ प्रेशर ग्रुप ऑल्सो, इवन एवरीवन जो जब भी चाहिए होता है वो मूवमेंट्स के टाइम वो मूवमेंट करते हैं, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो क्यों हो रहा है. तो ग्रुप ऑफ पीपल दे आर रेजिंग देयर वॉइस. जरा याद करके देखो, हिटलर के जमाने में होता तो फिर ये मूवमेंट्स का कुछ वैल्यू होता क्या? नहीं. बिकॉज क्योंकि पावर हैज बीन सेंट्रलाइज्ड, हियर पावर हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड. पावर दिया गया है, सिर्फ देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी है, देन वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, इवन डिफरेंट सोशल ग्रुप को भी पावर दिया गया है. नॉट ओनली दैट, उन डिफरेंट पार्टी को भी पावर है. दैट्स वाई आफ्टर राइट इंटरवल दे आर दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन प्लेस एंड दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन. ठीक है. सो इन दिस वे दैट इंडिया दे आर sharing power, and that is we can say that really the essence of democracy we can get. Okay, is it clear? आज का सेशन कैसा लगा? Don't forget to share with me. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.